Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today I am going to explain the ball poem from CBSE class 10. तो सबसे पहले the word ball in this poem has nothing to do with an actual ball. है ना, इस चीज को हमें समझना होगा. इस वर्ड का यूज किया गया है चाइल्डहुड को सिंबलाइज करने के लिए. And before understanding the poem, it's important to know a little about the poet John Berryman. है ना, देखो, John Berryman born in the year 1914 and died in 1972. He experienced something very tragic during his childhood when he saw his father end his life. देखो ये अब एक बहुत ही unusual incident हो गया ना. When he was just 12 years old, he saw his own father end his life. और इस चीज का एक lasting impact उनके दिमाग में रह गया और eventually he too had similar kind of end है ना. He too ended his life when he was 64 years old. तो उनका उनके लाइफ का जो ट्रॉमा है ना, the trauma of his life can be sensed through this poem. Now, so this is all about John Berryman. Now, coming to the poem. देखो, this poem has been written in free verse. It has been written in free verse. Free verse क्या होता है? When there is no rhyming scheme which is followed in the poetry, so it is called as no rhyme followed in poetry is called as free verse. And it has been written in single stanza. तो एक single stanza poem में ये formal structure के बारे में हो गया. Now, coming to the text of the poem. What is the boy now who has lost his ball? The poet is questioning. ना वो एक बच्चे के बारे में सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि there is a boy who has lost his ball. He was playing with a ball and the ball has been lost. What is he to do? I saw it go merrily bouncing. देखो, मतलब the first line itself is shocking है ना. पहला लाइन ही एकदम से shocking है ना. What is the boy now? इसका क्या मतलब हो सकता है? Who is the boy हम लोग पूछ सकते हैं ना. What is the boy का मतलब क्या हो गया? मतलब वो बच्चा अब क्या है? What has the boy become now? Who has lost his ball? What is he to do? Now what is he supposed to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. है ना? Merrily over there it is in the water. The poet was observing this boy play. उन्होंने देखा ये बच्चा बॉल से खेल रहा था, खेलते खेलते बॉल बाउंस करते करते एकदम से पानी में चला गया. तो बॉल को डिस्क्राइब किया गया है मेरिली बाउंसिंग. मेरिली बाउंसिंग, मेरिली का मतलब हो गया हैप्पीली. तो बिकॉज द बॉय दिस किड हैज लॉस्ट हिज बॉल, द बॉय इज सैड. है ना, इसका जो बॉल है वो खो गया है तो ये बच्चा बहुत सैड है, उदास फील कर रहा है. बट द बॉल वॉज जंपिंग हैप्पीली एंड देन इट वेंट टू द वाटर. अब देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ हो रहा है दोनों के बीच में. बच्चे ने जो खो दिया ना वो बॉल, उस बॉल के बिहेवियर में क्या है, मेरिली बाउंसिंग. बॉल हैप्पी था लेकिन बच्चा तो सैड है. तो ये कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के बिहेवियर में. नाउ देखो, ball here actually represents, it symbolizes childhood. Ball symbolizes childhood. ठीक है. And the ball symbolizes childhood. और lost ball जो है ना, it symbolizes lost childhood. तो बॉल जब पानी में एक बार चला गया वो बच्चा उसे वापस नहीं ला सकता. इट मीन्स द बॉल हैज बीन लॉस्ट. इट मीन्स द चाइल्डहुड हैज बीन लॉस्ट. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम, इस पोएम में बॉल का मतलब बॉल है ही नहीं. इट रिप्रेजेंट समथिंग इंटायरली डिफरेंट. बॉल कैन ऑल्सो रेफर टू थिंग्स विच वी होल्ड प्रेशियस इन आवर लाइफ. थिंग्स विच वी होल्ड प्रेशियस इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में जो भी चीज प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन सब चीजों को we can refer, we can symbolize through this word ball in our life. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. Where his ball went, I would not intrude on it. देखो, but यहाँ पर ये बता रहे हैं कि it is useless to tell the boy that there are other balls, that he can get other balls. The boy had the boy had formed an emotional bond with that particular boy ball. वो बॉल कोई नॉर्मल बॉल नहीं है ना, वो उसके चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो उस बच्चे का बॉल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका था. एंड ही हैज लॉस्ट दैट बॉल. देखो, लॉस्ट बॉल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस्ट चाइल्डहुड मीन्स, व्हेन वी आर चिल्ड्रन,
है ना। जब हम बच्चे रहते हैं तो वी लिव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ केयरफ्री काइंड ऑफ लाइफ। बहुत चीजों के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। वी लिव अ वेरी केयरफ्री लाइफ। बट एज वी बिगिन टू ग्रो, देर आर सर्टन थिंग्स विच वी कम अक्रॉस, जिसे वी कैन टर्म एज एक्सपीरियंसिंग लॉस, है ना। लॉस को पहली बार एक्सपीरियंस करना, ये कब होता है, एज वी, ये भी मतलब लाइफ का ही एक फेज है। वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। तो इस बच्चे ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉस को एक्सपीरियंस किया है। ही हैज लॉस्ट समथिंग precious, his ball. As he stands rigid, and because of this loss, the boy is experiencing the trauma which the boy has experienced. Because of this reason, the boy has become rigid, है ना। उसके बॉडी में क्या हुआ, एकदम से मूवमेंट नहीं हो रहा है। The boy has become rigid, trembling, यानी कि shaking, shivering, staring down all his young days into the harbor there. जो हार्बर है ना यहाँ पर, हार्बर, this word harbor here represents a place from where things which are lost cannot be brought back, है ना। हार्बर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ऐसे प्लेस को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से जो चीजें चली गई उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। रिप्रेजेंट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर things which are lost cannot be, things which are lost cannot be brought back। ठीक है। तो suppose, as I told you, ball represents anything or things which we hold precious in our life। तो precious हमारे लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स प्रेशियस हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो सोशल सर्कल है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which कैन बी प्रेशियस इन आवर लाइफ। तो इट इज पॉसिबल दैट व्हेन वी ग्रो, है ना, बट बचपन में तो वी लिव अ वेरी केयरफ्री लाइफ, और वी हैव नेवर एक्सपीरियंस लॉस। It is part of growing up. When we grow, there are certain things which we come across. We have to experience loss in our life. और एक बार जब हम लोग लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो there is something which we learn, है ना। और इस बच्चे के साथ भी यही हो रहा है। वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लॉस को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो ग्रीफ, ट्रॉमा को यहाँ पर फील कर रहा है। दैट्स व्हाई एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, है ना। इट हैज बीन रिटन दैट अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब वो एकदम से मूव नहीं कर पा रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, trembling, staring down all his young days into the harbor। तो उसका जो बचपन है ना, तो वो जो चाइल्डहुड है, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, उस बॉल से। एंड द बॉल हैज बीन लॉस्ट। देखो, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट, हाँ, हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, है ना। उसका बॉल कहाँ चला गया, हार्बर में। तो हार्बर का मतलब यहाँ पर हार्बर नहीं है। हार्बर इज जस्ट अ मेटाफर। हार्बर इज जस्ट अ मेटाफर, है ना। इस चीज को हमेशा मतलब ध्यान में रखना। हार्बर हेयर इज अ मेटाफर, एंड बॉल, है ना, बॉल इज अ, बॉल के केस में क्या यूज हुआ है, सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। और हार्बर के केस में क्या यूज हो रहा है, मेटाफर का यूज हो रहा है। हार्बर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर थिंग्स विच आर लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। तो एक बार मान लो किसी की डेथ हो जाती है घर पे, फैमिली में, तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, है ना। तो वो कहाँ चले गए, वो हार्बर में चले गए। एंड उन लोगों को, वो जो प्रेशियस लोग हैं हमारे लिए, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस बॉल से ना, द बॉल विच हैज बीन लॉस्ट, है ना। क्योंकि एक बच्चे के लिए बॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, देखो, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन इट। जॉन बेरमैन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि द बच्चा, वो जो चाइल्ड है ना, वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, बट स्टिल ही वुड नॉट इंट्रूड। वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। ही डजंट वांट टू इंट्रूड ऑन हिम। A dime another ball is worthless। उस बच्चे को अगर बोला जाए ना कि you can get another ball, I can pay you for that ball which has been lost, है ना, वो उसके लिए क्या है, worthless है, useless है। उस बच्चे को का जो इमोशनल बॉन्ड अपने बचपन वाले बॉल के साथ था, वो दूसरे बॉल के साथ हो ही नहीं सकता है। बट ही इज नॉट गोइंग टू गेट बैक दैट बॉल। आप उसे 10 और बॉल ला करके दे सकते हो, लेकिन वो बॉल जो खो गया, जिसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, द बॉल हैज बीन लॉस्ट फॉर एवर। Now he senses first responsibility in a world of possessions। अब देखो, this is the first time in his life when this kid is experiencing something uh, about responsibility, है ना। उसे अब समझ में आ रहा है कि we live in a world of possessions। हम लोग कहाँ रहते हैं,
वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मतलब वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का मतलब क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो चीजें हमारे अगल बगल है ना। People will take balls, balls will be lost always. We live in a world where things which are precious to us, we are supposed to lose it, है ना। हम लोग रहते ही हैं मॉर्टल वर्ल्ड में। मॉर्टल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मॉर्टल और इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है थिंग्स विच आर गोइंग टू बी एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नहीं मरेंगे। और मॉर्टल का मतलब जिनका एक एक्सपायरी डेट होता है। तो you can imagine we live in a mortal world, so obviously we human beings are meant to experience loss in our life. There is nothing we can do about it. People will take balls, balls will be lost always, है ना। यहाँ पर ball ball को represent कर ही नहीं रहा है। Ball represent things which are precious in our life. So there will be time in our life when we will lose lots of things. देखो, लिटिल बॉय, अब यहाँ पे ना पोएट जो है ना वो क्या बोल रहे हैं कि he is not willing to intrude. He can see that the boy is अंडरगोइंग ग्रीफ, है ना। वो जो बच्चा है वहां पर ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर भी पोएट वहां पर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि पोएट को मालूम है दैट दिस इज पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ये उस बच्चे के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। उस ग्रीफ को एक्सपीरियंस करना, ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करना उस बच्चे के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस ग्रीफ के बाद ही, उस फेज के बाद ही उस बच्चे में एक एक्चुअल ग्रोथ होगा, है ना। देखो, ये आयरनी है कि बिना ग्रीफ के हम लोग ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning. देखो वो उस बच्चे को इंटरव्यू करके कोई फायदा नहीं था, इंटरफेयर करके ये कम आई विल गेट यू अनदर बॉल, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। इन सब चीजों को बताने का कोई मतलब ही नहीं था ना। जरूरी ये था कि उस बच्चे को वो ग्रीफ वाले फेज से गुजरना, ये बहुत जरूरी था। Why? Because it is important for his personal growth. वो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे तभी ग्रो कर पाएगा जब वो उस ग्रीफ को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। He will learn that this is a world of position. We live in a materialistic world. We live in a mortal world. We are supposed to die. People related to us are supposed to die. We are supposed to lose things. आज तो सिर्फ एक चाइल्डहुड की बात हो रही है, but there are things in his life which he will keep losing, है ना। एक एक करके हम लोग सब कुछ खोते चले जाते हैं, है ना। और अल्टीमेटली हमको खुद भी जाना होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, है ना। नो बडी कैन बाय अ बॉल बैक, मतलब पैसे से आप नया बॉल भले ही ले आ सकते हो, लेकिन द बॉल विच हैज बीन लॉस्ट, थिंग्स विच आर लॉस्ट, है ना, थिंग्स प्रेशियस थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन आवर लाइफ, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक यूजिंग मनी। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज वर्थलेस। यहाँ पे पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। ही इज लर्निंग, द बॉय इज लर्निंग, वो ना उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी, दिस वर्ड हेयर refers to knowledge, है ना। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस। देखो, नॉलेज ऑफ लॉस, है ना। तो ये बच्चा जब ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहा है तो लॉस के बारे में, ग्रीफ के बारे में वो सीख रहा है ना, वो समझ रहा है, लाइफ के बारे में वो समझ रहा है। देखो, नाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन, नाउ देखो, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोम, इंस्टीड ऑफ बॉय, जॉन बेरीमैन हैज यूज्ड मैन, है ना। पहले पूरे पोम में उन्होंने क्या यूज किया? बॉय 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 करके बता रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो ग्रीफ वाले फेज को पूरा से गुजर जाता है, he has used word man for that boy। क्यों? मतलब उस बच्चे का इवोल्यूशन यहाँ पर हो गया है ना, वो ग्रो कर गया। वो पर्सनल लेवल पर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो ग्रो कर गया, है ना। अब वो एकदम से बच्चा नहीं है, वो बॉय से मैन बन चुका है ना। Knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। how to stand up मतलब how to show resilience। how to stand up का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? how to show resilience, ability to fight back, ability to deal with life, है ना। it represents resilience, का मतलब क्या होता है? resilience। so this is all about the poem, the ball poem, and the poetic devices which we have discussed today। पहला एक हो गया symbolism, दूसरा हो गया metaphor, and there are plenty of other poetic devices as well, जैसे कि
देखो enjambment. We can see use of enjambment here. What is enjambment? Enjambment का मतलब होता है change of lines, change of lines without punctuation, without punctuation. लाइन के कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए पोएट्स क्या करते हैं, कभी कभी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एकदम से लाइन को चेंज ही कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ही देख लो, देर इज नो कॉमा, देर इज नो फुल स्टॉप, नथिंग एट ऑल, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इंजैममेंट। फिर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी इंजैममेंट यूज हो रहा है, यहाँ पर भी इंजैममेंट। There are plenty of places where this poetic device enjambment has been used, and as I told you, ball here is a symbol, है ना। सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। बॉल क्या रिप्रेजेंट करता है पोएम में, बॉल रिप्रेजेंट थिंग्स विच वी होल्ड प्रेशियस इन आवर लाइफ, या फिर लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना। बॉल रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड को। देखो सारे कल्चर में ना, वर्ल्ड के सारे कल्चर में जब हम बच्चे रहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स जब बच्चे रहते हैं वो बॉल से ही खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, रग्बी हो, क्रिकेट हो, सॉकर हो, किसी भी गेम में बॉल का इंपॉर्टेंस रहता ही रहता है। तो ऑब्वियसली उनका फेवरेट होता है। बट एज वी ग्रो अप द बॉल डिसअपियर्स फ्रॉम आवर लाइफ, क्यों, है ना। वो बॉल कहाँ चला गया, बॉल कहीं नहीं गया, वो चाइल्डहुड चला गया, है ना। चाइल्डहुड एंड बॉय एंड बॉल, ये क्या है यहाँ पर, सिनोनिम्स के जैसा यूज कर दिया गया है, समझ लो, सिंबोलिज्म। एंड द हार्बर, बॉल कहाँ चला गया, हार्बर पे चला गया। हार्बर क्या हो गया, हार्बर एक ऐसी जगह है where things which are lost uh, are kept and they cannot be brought back, and उन चीजों को हम वहां से वापस ला ही नहीं सकते हैं। The theme of the ball poem is loss and acceptance, है ना, loss and acceptance। कभी कभी लॉस के बाद लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इट एक्सप्लोर्स द बॉयज फर्स्ट इनकाउंटर विद ग्रीफ एज ही लूजेस हिज बॉल। पहली बार जब वो जो बच्चा है ना, वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लॉस को एक्सपीरियंस कर रहा है इतने क्लोजली, एंड ही डजंट नो हाउ टू डील विथ इट। तो वो एकदम से रिजिड हो गया, एकदम से उसकी बॉडी जो है स्टैटिक हो गई, वो मूव नहीं कर रहा है, ट्रॉमा में है ना, इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ। बट लेटर ऑन, है ना, उस ग्रीफ के फेज के बाद क्या होता है, वो उन चीजों को समझ जाता है, सेंसेस फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। और फिर जॉन बेरीमैन इंस्टेड ऑफ बॉय यूजेस मैन फॉर हिम, है ना, सिंबलाइजिंग चाइल्डहुड इनोसेंस। बॉल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, चाइल्डहुड इनोसेंस को। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स इनएविटेबिलिटीज, है ना। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज श्योर टू हैपन, जिस चीज का होना निश्चित हो उसे हम लोग इनएविटेबल बोलते हैं। जैसे कि लॉस, है ना, अपने, बिकॉज वी लिव इन अ मॉर्टल वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लॉस एक्सपीरियंस करना ही करना है ना। एंड देयर आर दिस थिंग्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू फाइट बैक। इन सब चीजों को हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही होता है। Since we have already discussed the entire poem line by line, it's summary को आप लोग अपने notes में use कर सकते हो। Go through this summary। हाँ, let's have a look at the vocabulary। rigid का मतलब होता है stiff, मजबूत एकदम से। trembling का मतलब सीवर करना। harbor, harbor क्या हो गया, वो पानी के बारे में बात हो रही है ना, जहाँ पर बॉल खो गया था। possessions, possessions का मतलब होता है ownership। merrily, happily। There is one more poetic device which has been used but we have not discussed। ये जो बॉल के लिए यूज किया गया है ना, merrily bouncing। देखो, बॉल इज merrily bouncing। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यूज ऑफ personification। द बॉल इज हैप्पीली बाउंसिंग, यानी बॉल हैप्पीली बाउंस तो कर नहीं सकता है। इट इज यूज, देयर इज यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन। बॉल को एक इंसान की तरह, पर्सन की तरह दिखाया जा रहा है। So there is this poetic device as well which has been used here, personification, symbolism, personification, metaphor, and epistemology of loss, enjambment। इन सब poetic devices का यहाँ पर यूज किया गया है। और भी काफी poetic devices है, but these are what we have discussed so far। हम्म
go through this vocabulary और vocabulary को अपने notes में use करना. These are the short answer type questions from the same chapter. You can use it for your notes. Hmm. Now, so this is all about the day. अगले क्लास में हम लोग को एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. अगले वीडियो में we will discuss a new poem or a new chapter, whatever it is. And this is all for the day. Thank you, everyone.